an institute called Indo-Swiss Training Center. It was part of our institute CSIO Chandigarh. So there I used to teach entrepreneurship, and believe me, that institute is known for handwork. The student who passes out from that institute, उसको लोकल चंडीगढ़ के लोग घड़ी फैक्ट्री के नाम से जानते हैं. मीन्स घड़ी के पार्ट वहाँ के बच्चे बना लेते थे. तो as on date, that institute has produced more than 1,000 entrepreneurs. Thousands of people are working in Japan and Canada. Means Punjab, again, that is one factor. But ultimately, beyond localization, those guys are so expert. So practically, आप जो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उसमें आप मेहनत करिए, अपना पैशन डेवलप करिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा, है ना? थैंक यू सो मच. कहते हैं ना कि मौजों से घबरा कर कश्तियाँ पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Dr. Bhaskar sir, may I have some views on suppose if someone, some student, anybody wants to adopt their career as an entrepreneur, so how he can take the advantage of indigenous technologies as an entrepreneur? Any new idea today, it is the period of, or it is the time when ideas are precious. Funding is no problem at all. You can get any amount of funding if your idea is visible and it has value, it has merit. So that's the first thing that you need to understand. You may feel that you don't have any money to invest, so how can you be an entrepreneur? Anyone having good idea can become entrepreneur now. And you see, all the biggest organizations in the world actually started with idea only. Be it Google, Microsoft, or any other organization, it all started, or Apple for that matter, it all started with just idea. And these people were simple either dropouts, college dropouts, majority of them being college dropouts. So it is not that they were learned or they'd studied PhD, they'd done a lot of research in their institutions and then they were able to do it. No, they had good idea which could be converted into product or service and which was useful, which was solving worldly problems. And if you have an idea that can solve a problem, existing problem, then that idea can be sold. I mean, can be sold. I'm not saying that you sell it to somebody else so that somebody else can use that idea to become an entrepreneur. That means it can be sold to the funding agencies, and there are so many now. And you find there are a lot of programs even on TV today. When there's a lot of funding that happens, and you would be able to, if you watch those programs, you find some very, very simple ideas, and they also get a lot of funding. So it is just that if you have any idea, and if you don't have right now, start thinking, what are the basic problems people face? Start from that and look at how can those problems be alleviated, how can those problems be solved. Find some innovative idea around that, and I'm pretty sure that that idea can be funded and that can be converted into a product or service. But it is just, you need to concretize the process, how that idea can be used to solve the problem. Once you concretize, it can be funded. Just having an idea and telling somebody else will ensure that somebody else will concretize it and will get the funding. Right? So that is what you need to understand, and I'm telling you that this has happened with Indians so many times. I was talking about yesterday Professor Rajiv Motwani, who had developed this page ranking algorithm based on which Google was developed.
And in fact, this Larry Page and his friend, they associated with him to learn how, learn about number of algorithms that Professor Rajiv was developing at that time, and utilize those, the idea of Rajiv, and develop Google. So it is just that, either use it or lose it. So if you have an idea, use it. Right. Thank you. Thank you, sir. An idea can change your life, and indeed, believe me, it will. It works, in fact. Sir, I want to share one moment. Yesterday we had an inter-college ideathon. So one student come up with an idea. He has developed an app, and he buy and sell the Shivanis, in fact. He buy the Shivani in rupees 30 and sell Shivani to the student 60 rupees. So that kind of. I have something to say on this. If any student is found with Shivani in this institution, I will personally take it outside gate and burn it in front of you. So please don't use Shivani. It is of absolutely no use. Shivani is not question and answer series. कौन सी? It will finish your learning if you use Shivani. So don't use Shivani. This is good. Somebody has used that app and sells it to somebody else. But I would say stop using that app for selling Shivani. Sell something else. It is not essential to sell Shivani. There are a lot of good material available on net, free of cost. Spread that. Even if you charge something for making that available to people, good, not an issue. But don't do it with Shivani. That's pretty bad. You're finishing the other budding engineers. That's not good. Dr. Singh, he wants to actually. Frankly, I don't know what Shivani is. I just came to know. But that one more thing which NEP is working on. I was recently in IIT, very reputed IIT. We went for an MOU with that IIT. And the discussion in the evening with some of my friends who are faculty there was that today in IIT, the hardest thing is to get failed. The hardest thing is to get failed. A student has to really work very hard to get failed. Why? Because the focus now, as per NEP, I have not read about NEP much more, but the concept which I know from the people around me is that the exams are no more a criteria for your success and failure. They are just an event which endorses your educational qualifications. But if that is still the focus in your minds, forget that you will be doing something good in the field which you are vying for. So that is what point. Really, I had a comment. He is a very reputed faculty in physics in a very reputed IIT. It is very hard because there the students are no more focused on passing and failing. They are more focused on learning that makes them employable on one hand, and there is another lot of students who has a focus on doing something which no one has done. So their focus is different, but ultimately exams are just an event which you should go in for. And I would also suggest that you should also make, because it is an indicator of the maturity of an institution. Hard to fail. Thank you. So for your kind information, I would like to add some, I will share some information with you. Okay, Ministry of Education, and they are also planning to conduct the open book test instead of closed book test, and perhaps in one state, I think Gujarat somewhere, they have started this as a pilot project. So Shivani will not help out you no more, in fact. So forget about the Shivanis and concentrate on the studies. Sir, one thing I want to, that books wise ना, मैं सागर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ और
काफ़ी अभी तो काफ़ी कॉलेज काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी अच्छी लैब्स होती हैं। पहले शायद इतनी अच्छी लैब्स नहीं हुआ करती, नीरज सर को मालूम होगा। बहुत ही लिमिटेड लैब्स होते थे, बहुत ही लिमिटेड इक्विपमेंट होते थे, और शायद हम लोग कभी लैब्स जाते भी नहीं थे। तो लेकिन एक जो चीज़ मुझे अपनी सीनियर्स ने दिया वो है एटीट्यूड, कि आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना है। मैंने आपके यहाँ भी सेल्फ पे मिलमन हेल्केस देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मिलमन हेल्केस में कॉलेज से 25 ईयर्स मुझे हो चुके निकले हुए, मैं अभी भी मिलमन हेल्केस पढ़ता हूँ। मैं इनफैक्ट मैंने जो सर्किट डेवलप किए हैं वो 30 ईयर्स पहले मिलमन हेल्केस ने डेवलप किए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो DRT सार जो इनसेट 3DS में जो फेस मॉडरेटर यूज़ हुआ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, और वही कॉन्फ़िगरेशन जो है कैनेडी में दिया हुआ है। आप वो बुक्स नहीं है, वो बेसिकली वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो इन्वेंटर हैं, और उन्होंने जो लिखा हुआ है वो वैसा ही होता है एक्चुअल प्रैक्टिकली। तो मेरा तो सजेशन है कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आती हैं तब तक पढ़ते रहिए उसको। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलमन हेल्केस है, टॉबिन शीलिंग कम्युनिकेशंस में है, कैनेडी है। इन बुक्स को छोड़ना मतलब आप समझो आप कभी इंजीनियर नहीं बन पाएंगे आप, ऐसा है। हाँ, बाइबल्स हैं वो। Well, Dr. Alok Mittal, can you share something like skills one should have if you want to be a successful entrepreneur? Can you share something, some points on that? सर, स्किल्स की आपने बात करी है, दे आर एक्चुअली रिक्वायर्ड इन एवरी एरिया, वेदर इट इज इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और एनी अदर फील्ड। सो एज इट्स टॉकिंग फ्रॉम जुगाड़ इंजीनियरिंग, जो फ्रूगल इंजीनियरिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मतलब उसमें आप लोगों को सुन के हंसी भी आएगी। बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार उधर हरियाणा पंजाब साइड में ट्रैवल कर रहा था, तो गर्मी का सीज़न था। मेरी इच्छा हुई किसी रेस्टोरेंट में ढाबे में चला जाऊँ, वहाँ कुछ ठंडा पी लूँ। तो वहाँ गया तो पूछा, तो उसने कहा साहब लस्सी है, तो उसने ला के दी। तो आई वॉज एंजॉइंग दैट। फिर मेरी निगाह गई एक बहुत बड़ी सी वॉशिंग मशीन में से, उसने लस्सी निकाल के दी थी मुझे। तो मैं एकदम शॉक लगा देख के। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो बोले साहब यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये मिक्सर्स वगैरह में इतनी हम क्वांटिटी एक साथ बना नहीं सकते हैं, तो हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो लस्सी बनाने में करते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट सर, एंड सर इज फ्रॉम हरियाणा, सो सर विल एग्री दैट। तो ये जुगाड़ भी हमने देखा वहाँ पे। और बाकी आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, एंड इट केम एज अ रियल प्लेजेंट सरप्राइज टू मी। जैसे कैंसर इज़ अ कॉमन एलिमेंट, एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च has developed a medicine which they are claiming that ki by consuming those tablets a cancer will not get repeated again. For those patients who have undergone surgery followed by chemotherapy and then radiation therapy, there are in different categories of cancers there are chances of recurrence of those cancer, and the trials on animals are over and they have gone for FDA and other approvals. So if they get those approvals, they are claiming that ki by July or August this year that medicine will be made available at a cost of 100 rupees in the market per tablet, so that will prevent the recurrence of cancer. So these are the skills which our biologists and other scientists have exhibited. So they are witnessed in almost all the fields. Thank you, sir. Thank you so much. So we are almost at the end of the session. So now the house is open. If anybody wants to share their views, here she is open. Thank you, sir. Sir, I'm Dr. Rakeshwari Agrawal, and as I'm electrical engineering, actually एक concern है मेरा, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो ड्यू टू जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसके वजह से जो CO2 एमिशंस हो रहे हैं उसके वजह से हो रहे हैं। इंडिया ने कुछ टारगेट्स भी लिए हैं COP26 में कि पंचामृत जैसे कि ये एमिशन को 45% इंटेंसिटी तक रिड्यूस करेगा, 70 तक ज़ीरो नेट एमिशन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या कोई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स? वो भी अभी कॉमर्शलाइज नहीं हुआ है, किसी थर्मल पावर प्लांट पे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ करने वाले हैं सिंगरौली में, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके अलावा कुछ यूज़ करना
हम इसमें क्या कर सकते हैं जो CO2 का एब्जॉर्प्शन है उसके लिए? कहीं ना कहीं हम अगर EV पे भी जा रहे हैं तो हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है कहीं ना कहीं वो अगेन फॉसिल फ्यूल है, तो उसके बारे में पूछना था कि क्या कर रहे हैं हम या फिर क्या हो सकता है इसमें? जहाँ तक मुझे पता है, एक तो सोलर मिशन है आपका, दैट इज़ वन थिंग। हाइड्रोजन पे दुनिया बहुत तेज़ी से जा रही है। अगेन फ्यूज़न के बड़े बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं वेयर इंडिया एज ए पार्टनर। फ्रांस में कुछ चल रहा है, उसमें इंडिया कुछ परसेंटेज पार्टनर है। कंप्लाइंस तो ज़रूरी है, क्योंकि 2 डिग्री, मैं भी कहीं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर लेक्चर देने गया था, तो 2 डिग्री सेल्सियस जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू फ़ारेनहाइट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 103 या 4 हो जाता है, और उसको देख के ही हम डर जाते हैं। IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं, वो काफ़ी काम कर रहे हैं सोलंकी जी, वो जो उन्होंने वॉचेस पे काम कर रहे हैं, वो कि वो वॉच हमने भी इंस्टॉल की है इंस्टीट्यूट में, और CSIR के जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत हम कई सारे स्कूल्स में भी इंस्टॉल कर रहे हैं। बट वो इंडिकेटर है, बेसिकली हम नहीं घबरा रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जहाँ बात करें, क्या होता है कि जब इंडियन सिस्टम में आप ग्लोबल कंप्लायंस के लिए पर कैपिटा निकालते हो तो स्टिल वी आर एट ए वेरी मीन्स लो, नीचे पायदान पे। मोदी जी ने कई कमिटमेंट्स की हैं, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट की ओर से एट द इंटरनेशनल फोरा, दैट शोज हिज लीडरशिप। बट अल्टीमेटली बहुत कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड को करना है। आज साउथ अमेरिका में आप देखिए क्या हो रहा है, जो भी साउथ अमेरिकन का एक नॉर्मल व्यू है, पीपल अराउंड अमेजन थिंक दैट हमने थोड़ी ठेका ले रखा है दुनिया की ऑक्सीजन बचाने का। दे आर बर्निंग इट आउट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स। ग्रोथ को फोकस कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजबूरी है। बट वन ऑफ माई सीनियर प्रोफेसर्स, प्रोफेसर R.K. सिन्हा, ही वाज डायरेक्टर ऑफ CSIO, राइट नाउ ही इज एट गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, ही इज वाइस चांसलर। ही यूज्ड टू से, आइंस्टीन ने जो कहा है वह ज़्यादा सत्य है, E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी केवल अपना फॉर्म चेंज करती है, सोर्स आप कोई भी ले लो। तो अर्थ का अपना एक कंप्लायंस सिस्टम है, बट स्टिल यस वी नीड टू वर्क एंड वी आर इनफैक्ट वर्किंग। बिकॉज क्योंकि CO2 कन्वर्शन की जो आपने बात करी, वी हैव अ वेरी गुड साइंटिस्ट इन एम्प्री ऑन दिस सब्जेक्ट, बट वही है कि अभी हम उस लेवल पे नहीं, हम उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं, पेपर्स आपको खूब मिल जाएंगे हाई इम्पैक्ट फैक्टर के, बट द कॉस्ट और उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उल्टा, जैसे आप सोलर की बात करें तो सोलर पैनल बनाने में भी हमारा CO2 कहीं ना कहीं, वो तो आने वाले 25 साल में उस सिलिकॉन का डिस्वर्सल आपके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, नेचुरल है। बट आज की डेट में हम उस तरफ देख रहे हैं, CO2 के साथ भी कन्वर्शन में जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है उसकी जो एनर्जी से। बच्चे हैं, बिटकॉइन के बारे में खूब सुनते हैं, बिटकॉइन आप माइन कर सकते हो, बट उस माइनिंग में जितनी बिजली आप जला दोगे दैट इज मोर देन व्हाट यू विल माइन इफेक्ट। सो वो जो चीज़ है, तो दुनिया उसी से चलती है जो करेंटली फिजिबल है। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इसीलिए हैं कि नई फिजिबिलिटी तलाशी भी। कहीं ना कहीं आप देखिए इनकैंडेसेंट बल्ब कितने साल चला, 40-50 साल चला। CFL कितने जल्दी आई और गई, आज के डेट में LED है। तो वर्क इज गोइंग ऑन, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के हिसाब से ही काम होता है। जो आपने बात कही ना COP के कमिटमेंट, तो इसीलिए नेचुरली यदि आप देखोगे कि जो रिसर्च फंडिंग में पैसा आता है, गवर्नमेंट वही पैसा देती है जो उसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए उसको चाहिए। रिसर्च में इसरो की बात नहीं कर रहा मैं, CSIR इस तरह की जो रिसर्च है। सो राइट नाउ गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर फ्यूलिंग मनी इनटू दिस डोमेन, उनको जो कंप्लायंसेस शो करनी है, तो नेचुरल है, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। वी शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक। जहाँ तक मैंने सुना था कि काम भी कर रहे हैं सोलर पे, पर सोलर को बनाने के लिए भी जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं CO2 प्रोडक्शन। हाँ, आप देखिए ना, आप US की कंपनीज के बारे में पढ़िए। जैसे एक समय पे हमारी सुज़लोन वाज द ब्राइटेस्ट स्टार इन विंड एनर्जी, आज डेप्थ में है। आप US की आज की डेट में सोलर कंपनीज के हाल देखिए, वो ग्लोबल शिफ्ट है। हम अभी भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कंज्यूमर है, बट हमारे पास सूरज भी है ना उतना, उनके पास उतना कहीं कहीं नहीं है। सो वो जो चीज़ें हैं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है ना, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे वर्क करता है। इट इज़ नॉट जस्ट कि उससे आपका क्या मीन्स सस्टेनेबल एस्पेक्ट आ रहा है, बट हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे सस्टेनेबिलिटी क्रिटिकलिटी की ओर जाती जाएगी,
सोलंकी साहब के 2 डिग्री पूरे हो जाएंगे, उस दिन मजबूरी में हम वो भी करेंगे। सर लेकिन रिवर्सिबल हो जाएगा जो क्लाइमेट है हमारा। देखिए पचौरी जी ने तो कहा था 30 साल बाद गंगा जी भी सूख जाएंगी। सो इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज एट टाइम्स डिफरेंट, बट yeah, we should be concerned and the world is concerned. वर्ल्ड हैज सेट टारगेट्स, एसडीजी के जो 2030 के टारगेट्स हैं वो इसीलिए सेट किए हैं और उन टारगेट्स पे वर्ल्ड काम कर रहा है। काम कैसे करेगा? आरएनडी के थ्रू करेगा। सो आरएनडी में आप देखो जितने मिशन आ रहे हैं, आपका क्वांटम मिशन है, सोलर मिशन है, वो कहीं ना कहीं उसी डायरेक्ट। हम ग्राफीन पे काम कर रहे हैं, मैं शायद भूल गया, एम्प्री इज वर्किंग अ लॉट ऑन ग्राफीन। ग्राफीन सेंटर हम सोलर पे के जो मटेरियल है उसमें कुछ और कर रहे हैं, कुछ जिसमें CO2 एमिशंस कम हो, कोई ऐसा मटेरियल? सच अभी सोलर में इस तरह के डोमेन में कोई नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा बंदा है हमारे पास, ही इज वर्किंग ऑन इट। प्लस ग्राफीन के ऊपर हम कुछ समय में एक अच्छा खासा मिडिल लेवल पे स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर इन वी विल हैव ए सेंटर which is capable of catering to the needs of ISRO, DRDO and all those institutions and even industry. Recently we had MOUs with Eaton and all those global who are working on the next leg of 3D things. So we are there, we are working on those things. Even the government is forcing us to work on those things. Thank you. Yeah, please. Sir, please quickly. Actually, sir has to go in fact. ओके सर मैं शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे हमारी जो विलेज की एंशेंट टाइम में जो जितना भी वो मटेरियल्स यूज़ करते थे, तो जितना भी वो यूज करते थे वो ऑलमोस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर में वो सारा का सारा लोकलाइज जो है ना डिग्रेड हो जाता था। लाइक वाटर लिया, तालाब से लिया 90% वाटर, 10% कुएँ से लिया, पानी फिर वहीं चला गया। ठीक है, जो हमारे एनिमल से दूध मिला, ठीक है, उनसे गोबर प्रोड्यूस हुआ, वो खेतों में चला गया, खेतों से उनको फूड मिला। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि जो वो हमारा सिचुएशन था तो वो लोकलाइज था सिस्टम, जीरो इमिशन आई थिंक। तो हमारा जो मेरा क्वेश्चन है बेसिकली डॉक्टर संदीप सर से है कि वहाँ पर जो भी मटेरियल था दैट इज़ ऑलमोस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर एवरीथिंग इज़ रिसाइकल्ड। अब हम साइंस के एज में आ गए हैं, अब गांव में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी पानी टैप से आता है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड एवरीथिंग। तो क्या हम इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डू सच थिंग दैट कि जो हमारे एडवांस मटेरियल्स हैं विल इट बी पॉसिबल दैट विल बी एबल टू डिग्रेड in such a way so that not even 1 year, they even can be degraded in 4 to 5 years so that the cycle can continue. So, I don't know whether my question is related to today's talk or not. Actually, one thing is that we are working on microplastics, their effect and all those things, and that is one domain we are working. As such, not only EMPRI, everyone is working on having green plastics, which can right now if you go to any Reliance store, you won't find you won't find that bioplastics polythene they are now selling. So that is one way the consumption is going down. Those are basically degradable plastics already. So plastics have been actually banned, although you find it everywhere, but if you see the gadget notifications, they are banned in Madhya Pradesh. I think plastics are banned, single use plastics have been banned because they not only do a lot of damage to the ecosystem, but they also choke your water resources and all those things. So प्रयास तो हो रहे हैं। मटेरियल्स की जहाँ तक बात है, फिल्ट्रेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड इन सब के फिल्ट्रेशन के लिए हमने कुछ पैसिव चीज़ें बनाई हैं, वो सब चल रहा है। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए तो दुनिया ही लगी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या? और वही है ना कि दुनिया जैसे हमने पाई थी वैसे ही हम छोड़ के जाएं। दिस इज द जिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो कोशिश तो चल रही है, बट देखिए कोशिश के अगेंस्ट कंफर्ट आ जाता है। Sir, because now everything is going to be modernized. Even in villages, every house they have the cars and vehicles.
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत क्रेज बढ़ रहा है जी 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 एंड एवरी 2 to 3 ईयर एक बैटरी वहाँ से खराब होना ही वही मैडम ने जैसे कहा था कि इवन वो जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो भी नॉन रिन्यूएबल है। यस यस सर तो वो सब तो है, बट कंफर्ट के आगे वो चीजों का एक लेवल पे जाना, आप अपने प्रश्न का उत्तर आपने खुद ही दे दिया। यस सर जरूरी है, बट अभी हम उस जंक्शन पे नहीं हमें लगता कि हम पहुंच गए हैं कि उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को चेंज करें। कितने लोग हैं जो मार्केट में थैला लेके जाते हैं? तो दिस इज द चेंज। ये यदि हो रहा है तो अपने आप पॉलिथीन का यूज कम होगा, अपने आप सस्टेनेबिलिटी की ओर जाएंगे। और ये गवर्नमेंट यही सब तरह से कोशिश कर रही है कि ये चीजें हो जाए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि इससे अगली जनरेशन को वो नहीं मिलेगा जो हम देके जा रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक बहुत हार्मफुल। कल ही मैं कहीं एक बच्चे के बारे में बात चल रही थी, उस बच्चे का CRP 180 हो जा रहा था 3 महीने में। फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देके उसको ठीक करता था। देन वन गुड पीडियाट्रिशियन, आज आपका बच्चा फीड कैसे करता है? मैंने कहा साहब मिल्क बॉटल फीड करता है, फिलिप्स की खरीदते हैं, एवेंटिस की। उसको स्टरलाइज कैसे करते हैं? उबाल देते हैं जी। तो डॉक्टर ने कहा आप हर 1.5 महीने में उसको फेंक दो, क्योंकि उबाल के आप उसके माइक्रोप्लास्टिक्स कहीं ना कहीं उसको ईच कर रहे हो, बेसिकली इचिंग कर रहे हो आप उसके सरफेस की। आप तो सोच रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप इचिंग कर रहे हो, तो इचिंग की वजह से वो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके बच्चे के मिल्क में जा रही है, वो जाके उसको इन्फेक्ट कर रही है। और द डे 3 महीने से, मतलब वो पेरेंट्स पिछले 3 महीने से परेशान थे, और 1 महीने पहले से जब से उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, बच्चा है ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज। यही आपको हर वॉक ऑफ लाइफ में धीरे धीरे दिखेगा, और फिर आप उसके दिशा में काम करें। थैंक यू सर। Thank you, sir. So on behalf of the Prestige Bhopal and on my own behalf, I would like to thank all the panelists for expressing their views, for sharing their thoughts on indigenous technology for Vikasit Bharat. Thank you so much, sir. One more thing I would like to thanks Dr. Nilesh and Professor Saurabh Jain for organizing this symposium, this session. As we are the largest democracy in the world and we are having the largest youngest population of the world, I am sure by 2047 we will be able to achieve the mission of the Government of India, our Honorable Prime Minister, to find ourselves in the list of developed countries and become the largest economy of the world. दुष्यंत जी की 2 लाइन में आपको सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। With that, thank you so much. Thank you, Nilesh. Thank you, Saurabh. Thank you, sir. Thank you so much. Over to Dr. Richard. As our guest has time limitation, now I request our director sir to present a memento of token of love. All students are requested to please have their seats again.
Now I request to our Honorable Director Sir for inauguration of website. And I would like to call PMIR Web Development Team leader Mr. Suhas Kebat. Mr. Suhas Kebat. लोग तैयार हैं?